میں بارش نے واسا کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام بہتر نہ ہونے پر بارشی پانی جمع ہے۔ جی ہاں، فیصل آباد میں بارش نے واسا کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام بہتر نہ ہونے پر بارشی پانی جمع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد میں بارش نے واسا کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام بہتر نہ ہونے پر بارشی پانی جمع ہو گیا ہے۔ واسا کی جانب سے دعوے تو بہت کیے گئے تھے لیکن ان پر اقدامات نہ کیے جا سکے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانے گی عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں ہونے والی جو بارش ہے اس کے بعد واسا حکام کے جو دعووں اور ان کی کارکردگی کا راز جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ شہر کے بیشتر علاقے جو ہیں، نشیبی علاقے ہیں، وہ اس وقت زیر آب ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں، جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بارشی پانی جمع ہے۔ واسا حکام کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں مگر اس بارشی پانی کے نکاس کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد کا انتظامیہ کا جو سب سے بڑا دفتر ہے اس کے جو عقبی سائڈ کی شاہراہ ہے، یعنی کہ کمشنر آفس کی عقبی سائڈ کی شاہراہ ہے، اس پر بھی پانی جمع ہے۔ جامعہ چشتیہ چوک کی طرف جو آنے والی سڑک ہے اس پر بھی پانی جمع ہے۔ سیوریج کا کوئی مناسب انتظام موجود نہیں ہے، جس کے باعث یہ معمول بن چکا ہے کہ جب بھی فیصل آباد میں ہلکی یا پھر تیز بارش ہوتی ہے تو شہر کے مختلف علاقے جو ہیں پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واسا حکام کی جانب سے اس حوالے سے دعوے کیے گئے تھے کہ مونسون قریب آتے ہی ان کی جانب سے جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کر لیا گیا ہے اور بارشی پانی کے نکاس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو تمام ان کے جو انتظامات کے دعوے ہیں وہ ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ شہر کے کئی علاقوں میں اس وقت بارش کا جو پانی ہے وہ جمع ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ چند ملی میٹر بارش نے واسا کی کلئی کھول دی۔ ایک طرف بارش سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب ہیں تو دوسری طرف مین روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ شہر کے مین چوک جڑاوالا روڈ پر واقع عبداللہ پور چوک بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ ٹریفک گزرنے بھی دشواری کا سامنا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چند ملی میٹر بارش نے واسا کی کلئی کھول دی ہے۔ ایک طرف بارش سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں تو دوسری طرف مین روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ شہر کے مین چوک جڑاوالا روڈ پر واقع عبداللہ پور چوک میں بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ٹریفک گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں، رانا قمر زمان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا قمر، بتائے گا ابھی بارش ہوئی ہے، واسا کی ناقص حکمت عملی سامنے آ گئی ہے، بتائے گا کہ شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ہاں جی بالکل، ابر رحمت تو برستا ہے لیکن شہریوں کے لیے واسا کی نااہلی کی وجہ سے زحمت بن جاتا ہے۔ فیصل آباد کے نشیبی علاقے تو تالاب کا منظر پیش کرتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین روڈز جو ہیں، مین روڈز بھی تالاب سے کم منظر جو ہے وہ پیش نہیں کرتی۔ میں اس وقت موجود ہوں مین جڑاوالا روڈ پر، عبداللہ پور چوک شہر کا مین چوک ہے جہاں پر تھوڑی سی بھی بارش ہو تو پانی جو ہے وہ کافی مقدار میں یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گٹر کا پانی جو ہے وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے اس کے، جس سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائیڈ میں دکانیں ہیں، دکاندار جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس سے ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ان کی دکانداری خراب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں سے گزرنے والوں کی تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے محمد ادریس کہ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل سے جو ہے وہ ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے۔ پانی جو ہے یہاں پر کافی مقدار میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو پانی کی ایک کثیر مقدار یہاں پر جمع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا کہ بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا مشکلات آتی ہیں اور یہ ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے؟ جی، یہ بارش کی وجہ سے یہاں پہ واسا کی نااہلی کی وجہ سے بارش تو آنی ہے لیکن یہ واسا کی نااہلی کی وجہ سے یہاں پر پانی بھرا رہتا ہے اور گاڑیوں کا برا حال ہے، سڑکوں کا برا حال ہے۔ اس لیے یہ اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ یہاں پہ وہ نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیا معاملات ہیں، یہ کس وجہ سے یہ گٹر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، گٹروں کا برا حال ہے، پورا شہر ابلا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک چھوٹا سا سین ہے لیکن پورے شہر میں اسی طرح کوہرام برپا ہے، لیکن یہ کون دیکھے گا اس کو؟ یا عام شہری اسی طرح ہی پھنسے رہیں گے یا رلتے رہیں گے؟
बाकी ये जो आला हकाम को चाहिए कि यहाँ पर उन्हें कम से कम इन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बच्चे को मामला हो जाए, किसी बुजुर्ग को मामला हो जाए तो कौन देखेगा? फिर बाद में आके एम्बुलेंस देखेगी या ये आम आदमी की यही मामला रहेगा? ये आम आदमी इसी तरह ही ख्वार होता रहेगा या ये सब लोग हमारा तमाशा देखेंगे? हुक्मरान जो है मुझे लगता है कि तमाशा ही देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल आते हैं। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि मेन जड़ा वाला रोड है, ये आपकी दुकान भी यहाँ पर है, थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी काफी मिकदार में यहाँ खड़ा हो जाता है, क्या मुश्किल आती है? थोड़ी सी बारिश होती है और शहरी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया राना कमर, आप हमें आगाह कर रहे थे। झंग में भी सूरत हाल फैसलाबाद की जैसी ही है। झंग में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी का सैलाब आ गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। सुल्तान वाला मोहल्ला, खेतियां वाला बाजार, रेल बाजार में झंग सिटी और सैटेलाइट टाउन के इलाके गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुकी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, झंग की हालत बताइएगा। बिल्कुल, झंग में मामूली बारिश के बाद ही जल थल एक होकर रह गया है। गली मोहल्ले पानी से भर चुके हैं और यही वजह है कि अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सुल्तान वाला मोहल्ला, खेतियां वाला बाजार, टालियां वाला मोहल्ला, मुजाहिद चौक समेत जो दीगर गुंजान आबाद इलाके, जबकि इसके अलावा झंग सिटी और सैटेलाइट टाउन के अंदर भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। सवाल से मेरे साथ अहले इलाका मौजूद भी, उनसे बात करेंगे। सर बताएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी होगी? बिल्कुल सिफर है सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ और यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि बारिश के दौरान यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि ना कोई नमाजी यहाँ से गुजर सकता है, ना कोई कपड़े अच्छे पहन के यहाँ से गुजर सकता है। ऊपर से इतवार के दिन माहौल यही है, हर वक्त का यहाँ पर यही माहौल है। बहुत परेशानी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बल्दिया वालों से भी और आप लोगों की तफासुस से कि किसी तरीके से ये मसला हमारा हल किया जाए। उनका कहना है कि मसाइल का हल मुमकिन किया जाए। सर से और भी शहर में मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ पे पानी के बायस जो है गुजरना महाल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। झंग के बाद ओवर टैक्सिंग का जिक्र करें तो वहाँ भी इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर खड़े पानी से जहाँ आवाम को परेशानी का सामना है तो वहीं इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद बताएगा, यहाँ पर भी इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ओवरटेक्सिंग में मामूली सी बारिश क्या हुई, इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है कि शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जो है जमा हो चुका है। अगर ज्यादा जिस तरह से बारिश होती है, महकमा मौसमिया ने बताया, तो इंतजामिया कहाँ पे जाएगी? शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं शहबाज चौक अहम जगह है जहाँ पे जगह जगह पे पानी खड़ा है? जगह जगह पे पानी खड़ा है, चिकट बना हुआ है, लोगों का गुजरना बड़ा दुश्वार हुआ है। आप देख रहे हैं सारा कुछ इधर कितनी दुश्वारी हो रही है लोगों के गुजरने में। और मेरा ख्याल है ये इंतजामिया की नाअहली है, पता नहीं क्या वजह इतने लोग हैं, लोगों के पास मुलाजम पता नहीं घर में बैठे हुए हैं। ये शोरगो रोड देख ले, अपना गोजा रोड देख ले, जगह जगह पानी खड़ा है, कोई इंतजाम नहीं, इसकी निकासी का पता नहीं इंतजामिया क्या कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी और कुछ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, कितनी परेशानी? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सिटी 41 का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। ये ठीक है, शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा से चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट में होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया बारिशी पानी की निकासी करने में बुरी तरह से नाकाम है। शहर की छोटी बड़ी शाहराहों में फैसलाबाद रोड, डीसी ऑफिस, थाना सदर, जिला कचहरी और झुमरा रोड पर बारिश का पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा। इसी पर मजीद तफसीलात अब्दुल कदीर से जानेंगे। जी बिल्कुल, चिन्योट में ज़रई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली सामने आई है और शहर भर में गंदा बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जुमरा रोड पर। अली जब आपको दिखा भी सके तो ये मेन जुमरा रोड है और यहाँ पर गंदा पानी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। दुकानदारों की दुकानदारी बुरी तरह मुतासर हुई पड़ी है, जबकि यहाँ पर घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है। इस वाले से जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि जब भी बारिश आती है तो दूर तक जो है वो ये रोड नदी नालों का मंजर पेश करता है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। भाईजान बताइएगा, पूरा ये रोड जो है वो दुकानों के आगे दरिया का मंजर है, क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना पानी जमा हुआ है। दिन में थोड़ी सी अगर बारिश हो, यहाँ पे 2 दिन पानी खड़ा रहता है। हमारे कारोबार इतने मुतासिर हो चुके हैं, पहले लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कारोबार पे असर पड़ा हुआ है। अब आपके सामने यहाँ पे किसने आना है काम करवाने, हम गुजरने के लिए हम परेशान हो जाते हैं। अभी हम सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको ताला लगा के और हम घर चले जाएँ। पूरे शहर में यही हालात है, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये अपना एक विजिट करें और ये जो पानी। कदीर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि तांदियावाला में जहां मौसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूटा है, वहीं तूफानी बारिश से गली मोहल्लों में पानी भी जमा हो गया है, जबकि मुतादिद इलाकों में दरख्त गिरने के वाकयात भी रूनुमा हुए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे गुलरेज इकबाल से। बिल्कुल, तांदलेवाला और गिरदोनवा में जो मूसलाधार बारिश है उससे मौसम खुशगवार हो गया हुआ है और दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी हुई है। गुज़श्ता दिनों जो गर्मी की शदीद लहर बरकरार थी वो भी जो है बारिश से जो है वो लहर टूट गई हुई है और जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना हुआ है, दिलकश हो गया हुआ है। यहाँ पर बात की जाए तो बारिश के बाद जो है वो मंचले और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल आए हुए हैं और मेरे अकम में भी देखा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो पानी में खेल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। और अगर दूसरी जानब बात की जाए तो यहाँ पर जो मामूलाते ज़िंदगी हैं वो भी बारिश से शदीद मुतासर हुए हैं। बिजली का निज़ाम जो है वो भी काफ़ी दरम बरम हो गया हुआ है और उसके साथ साथ जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हुए हैं। मेरे अकम में देखा जा सकता है कि हद निगाह तक जो है वो बारिश ही बारिश जो है, बारिश का पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर। जबकि जो बट कॉलोनी है, इस्लामपुरा है, जना कॉलोनी है, मुबारक। इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर्स का 29 और 30 जीम बे का दौरा, डेंगू टीमों के हमरा सर्विलेंस का जायजा लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अताउल मोनम की जानिब से डेंगू टीम के हमरा 29 जीम बे और 30 जीम बे के इलाके का दौरा किया और इस दौरान डेंगू सर्विलेंस का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया। इस दौरान जो दुकानें थी या जो घर थे वहाँ पर मौजूद गमलों में पानी को चेक किया गया। इसके अलावा जिस जगह पानी खड़ा था उस मकाम को चेक किया गया कि कहीं इसमें जो है वो डेंगू लार्वा तो मौजूद नहीं, और उस पानी को ज़ाया करने के लिए फौरी तौर पर जो अहकामात थे वो जारी किए गए और जो वहाँ पे पानी मौजूद था इसके अलावा उसे बेहतर बनाने के लिए भी जो थी वो हदायत की गई कि कहीं इस पानी में जो है वो डेंगू लार्वा मौजूद ना हो। ऐसे में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल मोनम का ये कहना है क्योंकि जो है वो सीज़न चल रहा है बारिश का, तो ऐसे में मुख्तलिफ मकामात पे जो बारिश का पानी खड़ा होता है तो उसमें डेंगू लार्वा जो है वो बन सकता है, जिससे शहरी जो है वो मुतासर हो सकते हैं। इसलिए शहरियों को भी चाहिए कि डेंगू टीमों का साथ दें और ऐसे मकामात जहाँ पे पानी खड़े होने का, पानी की अफजाइश गाहें बनी हुई हैं तो वहाँ पे डेंगू लार्वा बन सकता है। इसलिए पानी को जो है वो जमा ना होने दें ताकि कातिल मच्छर से महफूज रहा जा सके। जी अज़दार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद फूड अथॉरिटी की जानिब से 12 फूड पॉइंट्स को सरबाबहार कर दिया गया। फूड पॉइंट्स पर जुर्मानों की अदम अदायगी, हशरात की कार्रवाई की गई। मदीना और आसिफ चिकन सही सील कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से फैसलाबाद डिवीज़न भर में मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और 12 के करीब ऐसे फूड पॉइंट्स जहाँ पर या तो फूड प्रोसेस किया जा रहा था या उनसे मुतलका चीज़ें जो थीं वो बनाई जा रही थीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस हवाले से फैसलाबाद में ना सिर्फ ऐसे मिल्क पॉइंट्स जहां पर दूध गैर मेयारी था उनको बंद किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर ऐसे स्टोर जहां पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऊपर जो था वो समझौता किया जा रहा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कई एक फूड पॉइंट्स के ऊपर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी मौजूद नहीं थे, जिनके बाद फैसलाबाद में चन्योट, टोबाटेक सिंह, गोजरा, झंग, फैसलाबाद समेत दीगर जगहों पर भी कार्रवाई की गई है और मुतलका दुकानें जो हैं वो सरबामोहर की गई हैं। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन कहते हैं कि सेहत के दुश्मनों के खिलाफ जो है वो इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और ऐसे तमाम यूनिट्स जहाँ पर गैर मेयारी अशिया ख़ोर-ओ-नोश बनाई जा रही हैं या फूड आइटम्स तैयार की जा रही हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात के लिए। माली साल 2019-20 में PHA फैसलाबाद को आमदन में 9 करोड़ का घाटा हुआ है। नए माली साल के आगाज में भी बिलबोर्ड खाली हैं, गिनती के चंद इश्तिहारात आए।
कोरोना के बायस लॉकडाउन हुआ और मईशत का पहिया जाम होने से बिल बोर्ड पर कोई इश्तिहारी मुहिम बाकी ना रही। लॉन का इश्तिहारी सीजन न लगने से भी पीएचए को करोड़ों रुपए खसारे का सामना करना पड़ रहा है, मगर नए माली साल के आगाज में ही बिल बोर्ड खाली हैं। खसारे के नतीजे में पीएचए के तरक्याती मंसूबे नहीं बन सके। पार्क्स, बागात, ग्रीन बेल्ट्स की खस्ता हाली भी कायम है। इससे कबल भी पब्लिक मुकामात से बोर्ड हटाए जाने के सबब पीएचए को 2 करोड़ रुपए आमदन से हाथ धोना पड़े थे। कोरोना बुहरान के बायस पीएचए को 9 करोड़ रुपए का टीका लगा था। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की तैयारियां शुरू। वोटर लिस्टों पर आज काम मुकम्मल किया जाएगा, जबकि कल तमाम वोटर लिस्टें चैम्बर में चस्पा कर दी जाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज भट्ट, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए 2020-21 की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इस वक्त वोटर लिस्ट की जो हतमी शक्ल है उसको दी जा रही है और वोटर लिस्टें जो हैं वो कल चस्पा कर दी जाएंगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2020-21 का फैसला क्या होगा, कौन होगा अगला सदर, नायब सदर और सीनियर नायब सदर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ जो है बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम इस हवाले से जो है वो भरपूर तरीके से तैयारियां भी करवा रहे हैं और इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का स्टाफ जो है वो वोटर लिस्टों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। और बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि कल जो है वो वोटर लिस्टों की बाकायदा तौर पर हतमी शक्ल उनको देते हुए वोटर लिस्टें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बाहर जो है वो चस्पा भी कर दी जाएंगी। कितने वोटर्स होंगे, कौन कौन अपने जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए वोट डालने का, वोट कास्ट करने का हकदार भी होगा और एलिजिबल भी होगा, इसका फैसला जो है वो कल बिल्कुल होगा और वोटर लिस्टें बाकायदा तौर पर चस्पा कर दी जाएगी। इस हवाले से आज बाकायदा तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जो है शुरू कर दी गई। ठीक है, शुक्रिया शिराज पर तफसीलात के लिए। चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने के दावे, जबकि हकीकत इसके बरअक्स। ज़राई मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। मुल्क में चीनी की 2.5 करोड़ बोरी की डिमांड, जबकि स्टॉक में सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख बोरी का स्टॉक मौजूद। तलब के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की 60 लाख बोरी कम है। शुगर डीलर्स का हुकूमत को चीनी दरामद करने का मशवरा। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे शिराज भट्ट। चीनी की कीमतें अब हफ्तावार नहीं यौमिया बुनियादों पर बढ़ने लगी हैं। पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि हुकूमत ने पॉलिसीज पर नजरसानी ना की तो चीनी की कीमतें बहुत जल्द 100 रुपए से तजावुज कर जाएंगी। जो रेट है वो तकरीबन 83-83.5 रुपए CNF कराची पड़ता है और वो भी बारे में नहीं है। हुकूमत को चाहिए इंपोर्ट करे और उसके ऊपर सेल टैक्स और ड्यूटीज जो है उसको या तो बिल्कुल खत्म करे या उसको कम करे। हाजी असलम भली ने बताया अगले क्रशिंग सीजन तक चीनी की तरफ 2.5 करोड़ बोरी है, जबकि इस वक्त हमारे पास 1 करोड़ 90 लाख बोरी है। 12 जुलाई को जो हमारे पास स्टॉक पोजीशन थी वो थी 1 करोड़ 90 लाख बोरी पूरे पाकिस्तान में। हमें चाहिए, जबकि 5 महीने क्रशिंग सीजन में पड़े हैं, 50 लाख बोरी हर महीने हमें चाहिए होती है। हाजी असलम भली ने बताया 60 लाख बोरी की शॉर्टेज पूरा करने का आखिरी हल इंपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स खत्म करना है। बसूरत दीगर चीनी की बढ़ती कीमत को कोई ना रोक पाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। तांदियावाला में मेडिकल स्टोर मालिकान अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुतासिर हैं। लीगी MP जाफिर अली हुचा ने भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले को अवाम दुश्मन करार दे दिया। तानियावाला में अद्वियात की कीमतों में इजाफे से स्टोर मालकान भी परेशान हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफा होते ही मेडिसिन माफिया की जानिब से सप्लाई कम कर दी गई, जिससे मार्केट में मेडिसिन शॉर्टेज का सामना है। सदर मेडिसिन एसोसिएशन चौधरी ज़ियाउल्लाह रहमान का कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटर कीमतें बढ़ने के बाद स्टॉक मेडिसिन की कीमतों को खुद से बढ़ाकर मार्केट में सप्लाई करते हैं। डिब्बियों से मिटाई गई कीमतों से खरीदार स्टोर इंतजामिया में झगड़ा होता है। आखिर गरीब आदमी की यही सी पहुंच कि अपनी जरूरियात नूं, अपनी तबीयत नूं मद्देनजर रखते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਫੀਆ ਬਿਠਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ 60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਹੈਗਾ और उसके ऊपर भी इस हुकूमत ने डाका डालना शुरू करता। दूसरी जानिब तांदियावाला में हल्का PP 103 के लीगी MPA जाफर अली होचा ने हुकूमती फैसलों को अवाम दुश्मन करार दे दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने मेडिसिन माफिया के सामने घुटने टेक कर अपनी नाअहली का सबूत दिया है। खान साहब ने पहले भी अद्वियात महंगी की थी और अब इसने 10% बढ़ाकर इसने आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। और जो लोग गरीब आदमी जो थे, जिनकी तनख्वाहें कम थी या जिनकी मजदूरी कम थी, अब मुझे तो नहीं लगता कि उनके लिए ये वो सर्वाइव कर सके बेचारे।
लीगी MP जाफर अली का कहना था कि तब्दीली हुकूमत ने अद्वियात महंगी करके मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हुकूमत अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस ले। कैमरा टीम के साथ गुलरेज इकबाल, सिटी 41 तानियावाला। गोजरा के इलाके ग्रीन टाउन के मकीन सीवरेज ज़दा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मकीनों ने अफसरान बाला से साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज फरहान अली। गोजरा के इलाके ग्रीन टाउन के मकीन सीवरेज ज़दा वाटर सप्लाई का पानी पीने पर मजबूर हैं। सीवरेज ज़दा पानी पीने के बायस मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम नजर आते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि जब हम पानी के पूरे पैसे भर रहे हैं तो हमें साफ पानी फराहम किया जाए। वाटर सप्लाई का पानी हमें मुहैया किया जा रहा है, उसके साथ सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का जो है खदशात हैं। तो हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि जैसे वो हमें उसकी कीमत हम उसकी अदा कर रहे हैं, वैसे हमें अच्छा पानी मुहैया करे पीने का साफ सुथरा। मकीनों का कहना था कि बारहा MC इंतजामिया को दरख्वास्त दी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर आना पड़ रहा है। वाटर सप्लाई का पानी इतना गंदा है कि इसे नहाने धोने के काम में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पानी जो हमें पीने के लिए मुहैया किया जा रहा है वो इवन के नहाने धोने के काबिल भी नहीं है, चूँकि इसमें सीवेज का पानी शामिल हो रहा है। और पीने का पानी अगर आपको चाहिए या तो आप परचेज करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाए। गवर्नमेंट दफातर है, जो हुकाम है, उनके पास भी चक्कर लगा लगा के हमारे लोग थक गए हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी पेशरफ्त नहीं की गई। इलाका मकीनों ने अफसरान बाला से साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की अपील करते हुए वाटर सप्लाई का मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। फैसलाबाद इलाही आबाद की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गईं। इलाके में सफाई का बंदोबस्त नहीं तो सीवरेज लाइंस खोलने भी कोई नहीं आता, मुकीनों की दुहाई। ये रिपोर्ट देखें। यह है फैसलाबाद सत्याना रोड का पसमाइंदा इलाका, जहां कई गलियां सीवरेज के पानी में डूब गई। शहरियों ने शिकवा किया कि मियां फरूख हबीब सिर्फ वोट लेने आए थे, फिर कभी नहीं देखे। वासा मुलाजमीन भी बंद सीवरेज लाइंस खोलने की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। बिलों की अदायगी के बावजूद पानी गलियों में जमा है। पिछले दिनों यहाँ पे फौत की, यहाँ पर दरिया बिछाने की जगह नहीं थी, तो लोग इतने ज्यादा परेशान। कम से कम ये तो काम हो सकता है ना कि यहाँ पर सफाई का इंतजाम हो जाए। शहरियों का कहना है कि इलाहाबाद में सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आवारा कुत्तों ने कमालिया की अहम सड़कों के अलावा AC ऑफिस के अहाते में भी डेरे डाल लिए। 6 माह में THQ अस्पताल में कुत्ते के काटने के 495 मरीज रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट करेंगे रिजवान खान। म्यूनिसिपल कमेटी कमालिया की जानिब से आवारा कुत्तों को तल्फ करने के इकदाम नहीं किए जा सके। कमालिया की अहम सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते दिखाई देते हैं। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को काटने के वाकयात सामने आते हैं। AC ऑफिस कमालिया में भी आवारा कुत्तों की भरमार इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने हुकाम बाला से अपील की कि कुत्तों को तल्फ करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। सोने की कीमतों में 1600 रुपए फी तोला इजाफा हो गया है। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1,11,250 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ताजिरों ने तशवीश का इजहार कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, सोने की कीमतों में 1600 रुपए फी तोला इजाफा हो गया है। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 1 तोला सोना 1,11,250 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि ताजिरों ने तशवीश का इजहार कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में इजाफे से जो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर आज सोने की कीमत पहुंच चुकी है। 1600 रुपये फ़ी तोला सोने की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोने की नई कीमत जो है वो 1,11,000 से भी तजावज़ कर गई है। जिसके बाद सोने की कीमतें बढ़ने से और इसके बाद जो डॉलर है उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। इससे क्या असरात होंगे मुल्की मईशत पर और कारोबार पे इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, फैसलाबाद के ताजरों से हम बात करेंगे। अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मियां तनवीर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से और कैसे देखते हैं कि सोना और डॉलर जो है ख़ास तौर पर इनकी कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं और आज सोने की कीमत जो है वो मुल्की जो तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। मियां साहब बताइएगा कि सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे और क्या आप देखते हैं कि हुकूमत कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है बढ़ती हुई महंगाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اس میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنا رول اب ادا کرنا پڑے گا. جب سونے کی قیمتیں اتنی بلند سطح پر چلی گئی ہیں تو آپ بتائیں کہ اس کی خرید و فروخت کیسے ہوگی, کیونکہ لوگوں کے عام آدمی کے تو بس سے سونا جو ہے وہ دور دور تک وہ میرے خیال خرید نہیں سکتا. اس کے لیے گورنمنٹ میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو اور جو ہے گورنمنٹ کے اداروں کو فوراً متحرک ہو کر اس کو جو ہے واپس اپنی جگہ پر لانا ہوگا. اور ڈالر جو ہے وہ بھی جس طریقے سے بڑھ رہا ہے تو اس سے مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آئے گا. آپ ایک چیز سوچیں, ابھی شادی جو ہے وہ معاملات ابھی بڑے سلو ہیں, جو ہے شادی ہال اور مارکیاں بند ہونے کی وجہ سے, تو ابھی سونے کی اتنی خرید و فروخت نہیں ہو رہی, تو بھی اتنے زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں. جب اس کی شادی بیاہ کے آگے سلسلے شروع ہوں گے تو اس وقت یہ ریٹ کہاں پر جائیں گے. تو اس مہنگائی کے طوفان سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس کی جو ہے بیک پہ جا کے اس کی وجوہات کو تلاش کر کے ایسے نہ ہو کہ پتہ پھر چلے کہ کوئی مافیا جو ہے وہ شوگر کی طرح اور دوسرے جو ہے پیٹرول کی طرح اس میں بھی کوئی مافیا انوالو ہو کر وہ اپنے جو ہے وہ پروفٹ لے جائے اور عام عوام جو ہے وہ پس جائے اس کے. جی بالکل, جی یہ بات آپ نے سنی. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ابھی شادیوں کا سیزن جو ہے وہ بھی نہیں ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے شادیاں بھی رکی ہیں, پابندی لگی ہے, لیکن اس کے باوجود سونے کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں, اب حکومت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کی بیک پہ جا کر وجہ تلاش کرنی ہوگی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں سونے کی جو قیمتیں ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب کسی غریب جو ہے, کوئی بھی غریب جو ہے اس کی پہنچ سے سونا دور ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس سونے کو خریدنے میں اب جو ہے وہ اپنی سکت نہیں رکھتا کہ بلند ترین سطح پر آج سونے کی قیمت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں ان کو متحرک کیا جائے اور وجہ تلاش کی جائے کہ آخر وجہ کیا ہے. غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. بہت شکریہ رانا فضیل احمد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد چڑیا گھر کی کمی پوری کرتا گٹ والا بریڈنگ سینٹر بنیادی سہولیات سے محروم نکلا. بریڈنگ سینٹر میں رکھے 100 سے زائد نایاب پرندے بارش میں بھیگنے اور سخت گرمی میں رہنے سے بیمار پڑنے لگے. انتظامیہ پرندوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی انتظامات نہ کر سکی. یہ رپورٹ دیکھیں. یہ ہے فیصل آباد کا وائلڈ لائف بریڈنگ سینٹر گٹ والا, جہاں مختلف اقسام کے نایاب پرندے رکھے گئے ہیں, لیکن انہیں سردی میں بارش اور طوفان سے بچانے کے لیے کوئی بھی انتظامات نہیں کیے گئے. گٹ والا پارک شہریوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا واحد وائلڈ لائف بریڈنگ سینٹر ہے, جہاں 46 مور, 55 تتر بٹیر اور دیگر 100 سے زائد پرندے بارش میں بھیگنے پر مجبور ہیں. شہریوں کا کہنا ہے برسوں سے پرندے ایسے ہی سردی گرمی برداشت کرتے آ رہے ہیں. جی بالکل, فیصل آباد میں یہ یعنی کہ چڑیا گھر بنایا گیا ہے, لیکن اس کی نا دیکھ بھال نہیں ہے. یہ پرندوں کے اوپر جو سی چھتیں ہیں وہ ویسے ہی ہیں, لیکن یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ چھتیں ان کے اوپر ڈالیں. شہریوں نے گٹ والے انتظامیہ سے پرندوں کو مرنے سے بچانے کے لیے بہتر انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین, فیصل آباد. زرعی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا اونٹ کی مصنوعی نسل پروری کا کامیاب تجربہ. ماہرین ایمبریو ٹرانسفر کے ذریعے پہلی اونٹنی کو مصنوعی طور پر حاملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف کی اس کامیابی پر فیکلٹی ممبران بھی خوش ہیں. زرعی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا اونٹ کی مصنوعی نسل پروری کا کامیاب تجربہ. ماہرین ایمبریو ٹرانسفر کے ذریعے پہلی اونٹنی کو مصنوعی طور پر حاملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے.